stars lie hidden in your soul. Dream deep, for every dream precedes your goal. All the power in the universe is already ours. It is we who put our hands before our eyes and cry that it is dark. मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हमारे गणमान्य अतिथियों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं। सर्वप्रथम हम स्वागत करना चाहते हैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री प्रेमपाल शर्मा सर का, और आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुरेंद्र सिंह और डॉक्टर सर का। दिशा परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इनके साथ हम लोगों के बीच उपस्थित हैं हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर शिव कुमार सहदेव, दिशा के संयोजक डॉक्टर दर्शन पांडे सर, और अन्य कमेटी सदस्य डॉक्टर विकास दुबे सर, डॉक्टर भरत रत्न सर, डॉक्टर प्रबोध मिश्रा सर, डॉक्टर विष्णु सर और हेमंत लांबा सर। आप सभी का दिशा परिवार की ओर से सादर अभिनंदन। A very warm welcome to all the esteemed guests and attendees who gathered here for the inauguration ceremony of Disha, the Civil Services Society of Shivaji College. भाइयों बहनों, जिस पल का हमें काफी समय से इंतजार था अब वो आ चुका है। लेकिन इससे पूर्व, जैसा कि हमारे देश की परंपरा रही है कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत हमेशा ईश्वर के नाम के साथ होती है, तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आइए दीप प्रज्वलित कर चलते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर, पृथ्वी से आकाश की ओर, प्राणी से परमात्मा की ओर, एक प्रयास अज्ञान से ज्ञान की ओर। Let us further evoke the blessings of Goddess Saraswati by proceeding with the Saraswati Vandana. You all are requested to close your eyes, join your hands, and let the illumination be soaked and reflected within. या कुंदे दो तुषार हार थबला या शुभ्र वस्तावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भी देवे सदा पूजिता सामा पातु सरस्वती भगवती निषेध जाद्यापहा। शांति शांति शांति। Here we present a video briefing about Disha, the Civil Services Society of Shivaji College. India, the great nation, rich in diversity across its length and breadth.
India, the great nation, well known all over the world for its rich culture and heritage. India, the largest democracy in the world. Dealing with the nation's magnificence and governing it as a whole is not simple undertaking. To serve for the same goal, we have national heroes, the most renowned, highly responsible officials who believe in honesty, integrity, impartiality, and objectivity, and who contribute considerably to nation building and act as the backbone to the successful government of the largest democracy. And we call them the civil servants of India. Being a civil servant is a typical aspiration for many people because it is one of the most prestigious jobs in the country. Many people begin studying for the examination to become a bureaucrat, but only few of them succeed because it is not like other examination. It is UPSC Civil Services Examination, which is considered to be one of the toughest entrance examinations in the country. Yes, tough to crack, but not impossible. Proper guidance, strategy, hard work, consistency, determination, and right direction is the key to this examination. To make this journey easy, here we present Disha, the Civil Services Society of Shivaji College. Disha, as the name itself suggests, we are here to help redirect the students to the right path and the right direction so that they can easily achieve their ambition of becoming a civil servant. The thing that holds the utmost importance while appearing for any competitive examination is proper guidance. When we analyzed that many students did not get selected just because they did not get the right guidance at the right time, this paved way for the formation of Disha, a newer society added to the Shivaji family. Here, we guide and counsel the students appearing for the civil services examination. We have formed a group of aspirants where we share the necessary study material, newspapers, current affairs, and to test the knowledge, regular quizzes are conducted. At Disha, we provide a platform where aspirants join us to make their journey a tad more enjoyable and a lot more easier. जी बिल्कुल, किसी भी सफलता को तब तक हासिल नहीं किया जा सकता जब तक उसके लिए सही निर्देशन ना हो। उसी दिशा निर्देशन के लिए एक नई पहल है दिशा, द सिविल सर्विसेज सोसाइटी ऑफ शिवाजी कॉलेज। दिशा का उद्देश्य समर्पित और उत्साही उम्मीदवारों को एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां उनको वृद्धि और सीखने के लिए उपयुक्त माहौल और मौका मिल सके। Introducing you all to the council members of our society, we have Mr. Umesh Meena as our president, Mr. Mayank Yadav as our vice president, Ms. Urvashi Gupta as our secretary, Mr. Sachin Meena as our treasurer, and Ms. Apurva Chaudhary as our joint secretary. भाइयों बहनों, हमारे देश की एक और परंपरा रही है अतिथि देवो भव। इन्हीं गणमान्य अतिथियों को संबोधित करने के लिए मैं आग्रह करना चाहूंगा हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर शिव कुमार सहदेव सर से कि वे आएं और सभी को संबोधित करें। Thank you, Mr. Prempal Sharma ji, Dr. Surendra Singh, my dear colleagues and dear students. I am very happy that the college has taken this initiative by forming Disha, the Civil Services Society, and I am sure that the society will help all the aspirants for civil services. As we all know that it's a very prestigious thing to be selected in these services. And I also personally feel that my students should also get proper guidance and help support whatever possible we can do to go for these services. So I am happy and I am sure that the society will work hard to give benefits to my students. And I also want to congratulate Dr. Darshan and all the office bearers and students who are engaged in this. So my best wishes for the success of the society. Thank you very much. आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे बढ़ने से पूर्व मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि का संक्षिप्त विवरण आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री प्रेमपाल शर्मा हैं। गत समय में सर
रेलवे मंत्रालय में संयुक्त सचिव, एनसीईआरटी सिलेबस कमेटी के सदस्य, ग्रेड ए सर्विसेज के कोर्स डायरेक्टर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन रेलवे में प्रोफेसर रह चुके हैं। इसके अलावा सच जाने माने लेखक और स्तंभकार हैं और विभिन्न अखबारों और पत्रिकाओं के लिए नियमित रूप से लेख लिखा करते हैं। सर की एक और खूबी यह है कि सर को हिंदी भाषा से विशेष लगाव है। तो ज्ञान की ओर दूसरा कदम बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करना चाहूंगा हमारे मुख्य अतिथि से कि वे आए और हम सभी का मार्गदर्शन करें। धन्यवाद विनायक। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। पहले तो प्राचार्य जी को बधाई, प्रोफेसर बनने की। मिठाई खिलाई है आप लोगों को? नहीं खिलाई अभी? सहदेव जी चले गए क्या? हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी सर। मिठाई कहाँ है? आइए सर, कॉलेज आइए, आपको जरूर खिलाएंगे सर। आपका सब्जेक्ट क्या है? फेसबुक पे दर्शन पांडे से देखा चारों तरफ से बधाइयों की। क्या सब्जेक्ट रहा है आपका? मैथमेटिक्स। ओ क्या बात है। पुराने दिनेश सिंह वाइस चांसलर की परंपरा में है, तो आपको एक और अगली शुभकामनाएं कि आप जल्दी संभालें उसे। दोस्तों बहुत सहजता से बात करेंगे, कोई तनाव की जरूरत नहीं है। रुचि, अंग्रेजी बोलने में कुछ तनाव आ जाता है, समझ गए ना, है ना? ये मैं एहसास कर सकता हूँ। और अगर वाकई आप सच्चे सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो एक उस सहज भाषा में बातों को बढ़ाएं, समझ गए ना? अंग्रेजी भी उतनी ही जरूरी है पूरे देश के लिए, मैं उसका उतना भी, लेकिन जिस प्रांत में हम रहते हैं वहाँ उस सहजता से आगे बढ़ना हमारा वो है। इनॉग्रेशन के लिए बहुत बहुत बधाई, दिशा के लिए बधाई, उमेश मीना और दर्शन पांडे के लिए आभार कि उन्होंने इसके लिए। लेकिन मैं थोड़ी सी एक माफी कि आज हम थोड़ा, क्योंकि उद्घाटन का मामला है, इसलिए कुछ बातें करेंगे। शेष बातें शिवाजी कॉलेज में एक बार मैं आ चुका हूँ कई वर्ष पहले। सभागृह में जब बच्चे होते हैं तो जो आमने सामने की जो बात होती है उसका एक अलग ही आनंद होता है। और मैं चाहूंगा कि आप पहली शुरुआत में ये कहूंगा कि अभी से आप कोचिंग के बारे में सोच के न चलें। मुझे पता है कि दिल्ली में शिवाजी कॉलेज में आप सब लोग, मुझे लगता है कि 80% दिल्ली के बाहर के हैं। अगर मैं मोटा जो अनुमान मेरा दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों से रहता है, सभी दोस्तों से रहता है, बिहार से, यूपी से, हरियाणा से, और वो दिल्ली आते इसलिए, और आप खुशकिस्मत हैं कि आप दिल्ली में हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में हैं, जहां आपको न्यूज़पेपर और ये सारी सुविधाएं मिलती हैं और आपको प्राचार्य जैसे योग्य प्रिंसिपल मिलते हैं जिन्होंने आपकी बात को आगे बढ़ाया है। दर्शन पांडे जी, इसमें विषय का उतना महत्व नहीं है जितना कि एक बच्चों को गाइड करने का है। मैं कुछ अनुभव आपको, और मैं इसलिए नहीं कि मैं सिविल सेवा के प्रति बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हूँ, और मैंने ये भी नहीं मानता कि सिविल सेवाओं से ही इस देश की तकदीर बदली आ सकती है। अगर बदली आ सकती है तो शिक्षा संस्थानों से बदली आ सकती है, लेकिन फिर भी हमारे लिए कैरियर की जो सुविधाएं होती हैं उसको हमें जानना चाहिए। क्योंकि आज समय की कमी से मेरे दूसरा एक कुछ कार्यक्रम थे, वरना मैं पूरा तसल्ली से आपको सुनता और आपके प्रश्नों का जवाब देता। और मैंने उमेश जी को कहा था कि कुछ प्रश्न जो आप करना चाहते उसी समय करेंगे तो अच्छा, तो उन्होंने मुझे कुछ लिख के दे। मेरी बात यहाँ तक समझ में आए? कोई मुंह से भी बोलेगा तो अच्छा लगेगा। हाँ, मुझे जिससे पता रहे कि मेरी आवाज भी आ रही है, जा रही है। दोस्तों पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि शायद आपको पता ही होगा कि सिविल सेवा है क्या। हालांकि मैं आपके नाम से थोड़ा सा, सिविल सर्विस सोसाइटी, अक्सर सिविल सर्विस सोसाइटी, आपको पता है दिल्ली में एक सिविल सोसाइटी के नाम से जाने जाते हैं जो ह्यूमन राइट्स से लेकर बहुत सारे इन आंदोलनों को आगे, उसको एक सिविल सोसाइटी के नाम का दर्जा है, एक एनजीओ है। और सिविल सोसाइटी मेरा हल्का सा सिविल सर्विसेज सोसाइटी ऐसा है कि जैसे कि जो लोग ऑलरेडी सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हो गए, अगर आप इसे, शायद मेरा एक पहला, जरूर नहीं है कि जो मेरी बात मैं कह रहा हूँ वो सिविल सर्विसेज स्टूडेंट्स, अभी तो हम उधर की तरफ बढ़ रहे हैं और दिशा संगठन उसको आगे की तरफ ले जा रहा है। और मतलब ये मेरा एक सिर्फ कहना है, क्योंकि अभी हम ये, वैसे तो हर उम्र, हर प्राचार्य, हर वो भी स्टूडेंट ही रहता है, लेकिन यहाँ वो लोग हैं कि जो इससे जुड़े हुए हैं और सिविल सर्विसेज की कल्पना को लेके
आगे बढ़ रहे हैं। मेरा पहला कदम कि आप जरूर सफल होंगे, क्योंकि किसी भी सपने की उड़ान इसी कदम से होती है। और इसमें यह भी मान के चलें कि आपकी अंग्रेजी अच्छी है या नहीं है, इस बात को बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि 79 में मैं हल्का सा कहना चाहूंगा, 79 में डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के फिजिक्स डिपार्टमेंट को की शोभा बढ़ाई, यूजीसी के 10 साल चेयरमैन भी रहे, शिक्षा आयोग के अध्यक्ष भी रहे 64 से 66। उनकी एक कमेटी 74 से बनी और उन्होंने, उस समिति ने रिकमेंड किया कि सिविल सेवाएं भारतीय भाषाओं में भी हों। इसे आप अपने दिमाग में, ये गांधी के सपनों को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया था। लोहिया जी ने लगातार बढ़ाया कि अपनी भाषा, लोहिया जी का जो कंट्रीब्यूशन है, और उसी शिक्षा आयोग में दौलत सिंह कोठारी ने आगे बढ़ाया कि अपनी भाषाओं में शिक्षा हो। मैं इसको इसलिए भी कि मेरे यहाँ पर कई दोस्त, जिनका मैंने अभी नाम नहीं मुझे याद आ रहा, शिक्षा जगत से लोग जुड़े हुए हैं, कि अपनी भाषाओं में शिक्षा होती है तो ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, नहीं तो हमारे बहुत सारे साल अंग्रेजी को रटने में ही, उसके बोलने में ही निकल जाते हैं, तो हमारी बहुत सारी ऊर्जा उधर चली जाती है। इसलिए डॉक्टर कोठारी ने रिकमेंड किया कि अगर इन बच्चों को अपनी भाषाओं में उत्तर लिखने की सुविधा नहीं दी जाती, अपनी भाषाओं में जितनी भी 8th शेड्यूल में है, असमीज, मराठी, हिंदी, तो ये टैलेंटेड बच्चे कहाँ जाएंगे। यहाँ पर मैं एक प्रश्न छोड़ रहा हूँ दर्शन पांडे जी के लिए भी और प्राचार्य जी के लिए भी, कि जब उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी थी तो उस समय उन्होंने कमेटी की रिकमेंड, मेरे पास है रिपोर्ट, कि लगभग 20-30% बच्चे 70 के दशक में राजनीति शास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, उसमें हिंदी माध्यम में पोस्ट ग्रेजुएशन भी करते थे। आज हम पोस्ट ग्रेजुएशन में तो लगभग गायब ही हो गया है, और हमारे जो पेरिफेरी के जो कॉलेज हैं उनमें भी लगातार अंग्रेजी माध्यम जबरदस्ती लादा गया है, क्योंकि उन बच्चों को एक कॉम्प्लेक्स पैदा किया जाता है। मैं 3 साल पहले हिस्ट्री डिपार्टमेंट में बच्चे फेल हो गए थे, उन्होंने कहा कि हमारे, क्योंकि मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, ये सिविल सेवा की तैयारी का ही मामला है, जो अगली जनरेशनों के लिए भी उतना ही जरूरी है। अपनी भाषाओं में जब पढ़कर आते हैं, अचानक ही उनको अंग्रेजी ला दी जाती है, तो वो इतिहास को इतना नहीं समझते। गणित और फिजिक्स के अंदर तो ये चल जाएगा, क्योंकि बहुत कम अंग्रेजी की जरूरत पड़ती है, लेकिन सोशल साइंस में इससे बड़ी परेशानी होती है। और इन सबको देखते हुए मेरी दिल्ली विश्वविद्यालय के लोगों से बात होती है और पता लगता है कि लगभग अब हम 0 की तरफ बढ़ रहे हैं पीजी क्लास में। बाकी पेरिफेरी के कॉलेजेस में कोशिश मैं चाहूंगा प्राचार्य से कि इतिहास, राजनीति शास्त्र, और उनको हमारे लेक्चरर दोनों भाषाओं में पढ़ने को प्रेरित करें और दोनों भाषाओं में पढ़ाने की भी कोशिश करें। ये पहला कदम होगा। अब मेरा संदेश दोनों के लिए है जो विद्यार्थी सिविल सर्विसेज देना चाहते हैं। अपनी आत्मा से पूछिए पहले, हाँ, सिविल सर्विसेज का दूसरा कदम कि कौन कौन सी सेवाएं होती है। जैसे कि कल मेरे नाम के आगे किसी ने IAS लिख दिया, परीक्षा सबकी एक ही होती है, जिसे सिविल सर्विसेज एग्जाम कहते हैं। पहली से लेकर अंत तक प्रीलिम एग्जाम होगा, मुख्य परीक्षा होगी, इंटरव्यू होगी, सभी का होगा, लेकिन नंबरों की मेरिट के हिसाब से आपको सर्विस मिलेगी। तो IAS और IPS, इन दोनों को तो अपना ये शब्द लिखने का वो होता है, बाकियों को अपना डिपार्टमेंट लिखना होता है। मुझे रेलवे मिला, मेरा छोटा भाई रेवेन्यू सर्विस में है, तो इंडियन रेवेन्यू सर्विस लिखेंगे। कोई ये वो नहीं है, एग्जाम में एक ही है, जनता की, क्योंकि आप कुल मिला के लगभग 24-25 डिपार्टमेंट होते हैं। जिसे स्टील फ्रेम कहते हैं भारत सरकार का, स्टील फ्रेम सरदार पटेल के शब्दों में, जो हमने ICS से बोरो किया, उसकी लंबी कहानी है, मेरी कई किताबें भी हैं। सिविल UPSC वाली उस लड़ाई को मैंने आगे लीड किया था, जिसमें CSET विवाद और विकल्प नाम से मेरी एक किताब थी, जो सभी दोस्त मुखर्जी नगर के साथ थे। और अगर 2014 में ये सरकार आई तो कम से कम वो प्रीलिम की परीक्षा में ही अंग्रेजी लाद दी गई थी। मैं आपको फिर से कहना चाह रहा हूँ, जब कोठारी आयोग ने 79 में कहा था तो प्रीलिम में भाषा नहीं थी कोई भी, आपका एक वैकल्पिक विषय होगा और जनरल स्टडीज होगी। तो 2011 में उन्होंने अंग्रेजी भी उसी में ले आए। खैर उस विवाद में नहीं जाएंगे, वो खत्म हुआ, लड़ाई लड़नी पड़ी, कोर्ट गए, सारा कुछ हुआ। तो अब तो ये 20 डिपार्टमेंट्स
रेलवे की 4 सर्विस होती हैं, ट्रैफिक, पर्सनल, अकाउंट्स, आरपीएफ। रेवेन्यू की 2 हो गई, कस्टम्स हो गई, इनकम टैक्स हो गई। पीएनटी की कई हो गई, पीएनटी सिविल अकाउंट्स हो गया, दूसरे इंजीनियरिंग सर्विसेज की हो गई, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हुआ, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, ये सारी बहुत सारी सर्विसेज है। ये सर्विस कई बार अपने लोग चॉइस से लेते हैं, कई बार आपको आपकी मेरिट से मिलता है। मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, अगले बार डिटेल में आके बताऊंगा, क्योंकि मैं इसका कोर्स डायरेक्ट कर रहा हूँ कि किस सर्विस में क्या क्या होता है। ये भी जानना उतना ही जरूरी है, क्योंकि जब मैंने 79 में पहला ये अटेम्प्ट लिया था और मैं दिल्ली पहुंचा और मुझे पहले अटेम्प्ट में सफलता मिल गई थी। मैं आभारी हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय का कि सेंट्रल लाइब्रेरी में बड़े आराम से उन दिनों बैठने दिया जाता था। मेरी दिल्ली प्रशासन में नौकरी थी, 5 सामनाथ मार्ग, वहां से शाम को पहुंच जाते थे। और मैं मेरठ यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई की, खुर्जा का रहने वाला हूँ, लेकिन वहां तो बस वैसे ही किसान के जीवन में भागते भागते, लेकिन मैं इस लेकिन पे जोर दे रहा हूँ। अगर 79 में पहली बार जब मैं बैठा और अपनी भाषाओं में लिखने की छूट नहीं होती, तो मैं किसी भी हालत में पास नहीं हो सकता। जब आप अपनी भाषा में देते हैं, इस देश की अधिकांश जनता गांव में रहती है। ये दुर्भाग्य है कि उनको ये रटाया जा रहा है। अगर आप सिविल सर्वेंट के रूप में सफल होना चाहते हैं तो पहले उस देश के लोगों की भाषा जानेंगे, नहीं जानेंगे? अंग्रेजी कितनी जानेंगे? किस इंग्लैंड के राष्ट्रपति से बात करनी है आपको? आपको अस्पताल की हमारा प्रशासन, हमारी नौकरशाही आज अगर फेलियर है तो उसका बहुत कुछ कारण यही है कि वो अंग्रेजी बोल के इलीट में शामिल हो जाता है। नई शिक्षा नीति 2021-20 में जो आई, जो कस्तूरी रंगन जिसके चेयरमैन के, उसके शुरू के पृष्ठों में उन्होंने यही लिखा है कि नौकरशाही में एक ऐसा अंग्रेजी दां है जो अपने को इलीट मानता है और वो जनता से दूरी, और वो इलीट ऐसा मानता है कि वो दिल्ली के शिवाजी कॉलेज में जाते ही, स्टीफन में जाते ही तो जाने और उसके नखरे हो जाते हैं कि वो अपने को जमीन पर पैर नहीं रखता। और इसमें वो सब शामिल हैं कि जो गरीब से गरीब तबके के आए, वो 10 साल के बाद लगता है कि जब तक कुछ ऐसी टेढ़ा मुंह करके अंग्रेजी नहीं बोलेंगे, मैं इसको किसी भाषा का विरोध नहीं, लेकिन जनता से दूरी का मामला है। आप मान के चलिए कि ये पहला कदम है सिविल सर्विसेज के लिए, और अपनी भाषाओं में। अब इसमें आपका मराठी का भी उतना ही सम्मान है, और ये भविष्य की भाषा नीति को भी काफी ठीक कर देगा। उम्मीद है कि ये सरकार एक एक कदम करके बढ़ा रही है, लेकिन कदम धीमे हैं। मैं फिर से बीच में अपनी टिप्पणी करूं, जब तक जेएनयू, जामिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इनमें उन बच्चों को बाइलिंगुअल पढ़ाने के लिए कदम नहीं उठाए जाते, तब तक हम इनॉग्रेशन दीप जलाते रहेंगे, सरस्वती वंदना करते रहेंगे और उनका कोई तालमेल नहीं होगा। ये पहला कदम है और शायद उम्मीद है कि केंद्र सरकार में जो भी बात हुई है कि वो एक एक कदम करके आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ, मैं अपने जीवन से जोड़ रहा हूँ कि जब आप गांव में रहते हैं, क्या आपको वहां पर कोई अंग्रेजी पढ़ाने वाला होता है? क्या सारे लोग दिल्ली आ जाएंगे? क्या सारे लोग जेएनयू पहुंच जाएंगे? हमारे पास हमारे बहुत अच्छे अध्यापक स्कूल में हैं, कॉलेजेस में हैं, जो अपनी भाषा में पढ़ाते हैं। क्या वो आपको अंग्रेजी पढ़ा पाएंगे? यहाँ मैं उन लोगों का भी सख्त विरोध करता हूँ, कांचा इलैया जैसे, कि जो गुमराह करते हैं कि आदिवासियों और उनको अंग्रेजी एक भाषा के रूप में हमें सीखने की जरूरत है, माध्यम के रूप में नहीं। ये मैं भाषा का मसला इसलिए कि सिविल सेवाओं में जिन लोगों को मैं एड्रेस कर रहा हूँ, जो गरीब हैं, वो अपना भाषा का माध्यम अगर हिंदी चुनेंगे तो शायद उसकी सफलता कई गुना ज्यादा होगी। अब कहेंगे कि सेवाओं के बाद में ये अपने मन से आप पूछिए कि आपकी अंग्रेजी कैसी है, क्या आप अपनी भाषा में, और इन भाषाओं की किताबें भी उपलब्ध हैं। निश्चित रूप से हमारे पास में बहुत सारा मटेरियल अंग्रेजी में मिलता है, हिंदू अखबार हो, यूट्यूब पर हो, सारा कुछ हो, उसे भी पढ़ेंगे, लेकिन अपनी भाषा में एक्सप्रेस करेंगे। मैं पिछले 4-5 साल से यूपीएससी सिविल इंटरव्यू बोर्ड, आप मान के चलें, राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र से आने वाले नौजवान मेधावी छात्र, उन्होंने माध्यम तो अंग्रेजी लिया है क्योंकि ज्यादातर वो इंजीनियर्स हैं, लेकिन इंटरव्यू के लिए बाकायदा उन्होंने हिंदी माध्यम चुना। मैंने पूछा कि आपने मराठी क्यों नहीं? तो बोले कि नहीं, हिंदी में मैं उतना ही बोल सकता हूँ। लेकिन मैंने इंग्लिश क्यों नहीं? बोले कि नहीं, इंग्लिश हम,
क्योंकि रोजाना की चीजों को, सोशल साइंसेज को विशेषकर, हम जितना अपनी सहजता से, वरना तनाव में आ जाएंगे, क्योंकि हमारा दिमाग अनुवाद करता है। चंद लोग ऐसे होंगे जिनका नाम नहीं देना चाहता, प्रधानमंत्री पहले, तो जो अंग्रेजी में सोचते होंगे, वरना ज्यादातर इस देश की जनता उसी में सोचती है। और यह चीज मुझे दक्षिण भारत में कई गुना ज्यादा प्रभावी लगती है। वो अपनी भाषा से वैसे नहीं बिदकते जैसे कि दिल्ली वाला बिदकता है। वो एक छोटी छोटी चीज भी अंग्रेजी के नोटिस, मतलब जैसे कि वो कहीं इंग्लैंड की किसी जो ने क्या रौ मारना चाहता है, ये शायद उस सहजता शिक्षण की जिस कदर के विरोध में पहला कदम है। इसलिए आप में से जो भी मेरी इस बात को सुन रहे हैं, ये चुने, और विशेषकर किताबें उपलब्ध हो रही हैं लगातार। इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री का भी मैंने किताबें देखी हैं, पर्याप्त मटेरियल उपलब्ध है। इसलिए जनरल स्टडीज से लेकर आपका स्ट्रक्चर को तो पता ही होगा। अब इस समय लगभग सबसे ज्यादा जोर करंट अफेयर्स पे 1000 नंबर का है। 250 के 4 पेपर होते हैं। आप मान के चलें कि अगर आपने अपनी भाषा चुनी तो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इन सबको बहुत सहजता से आप 1000 नंबर, और आपका अब पहले ऑप्शनल 2 पेपर हुआ करते थे, जिन दिनों सहदेव जी या दर्शन पांडे जी, या अभी 4 साल से अभी एक विषय रह गया है। अब एक विषय कोई भी चुन सकते हैं। आप हिंदी लिटरेचर भी ले सकते हो, इतिहास ले सकते हो, भूगोल ले सकते हो। 500 नंबर का वो हुआ, और 200 नंबर का आपको निबंध। अब फिर आ जाता है, आपने मान लीजिए इंग्लिश माध्यम ले लिया, करंट अफेयर्स वाली चीजें तो आपने रट के और वो कर ली, क्योंकि वो उसमें शब्दों की सीमा होती है। यूपीएससी एग्जाम की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि गप्पों के बजाय राइट उत्तर लिखो सिर्फ 100 शब्दों में, 50 शब्दों में, ज्यादा से ज्यादा 150 शब्दों में। आप कॉपी भरने के लिए नहीं है यूपीएससी एग्जाम। लेकिन निबंध का जो पेपर है उसमें 2 निबंध आपको लिखने होते हैं, जो जिसमें करीब 1000 से 1200 शब्दों में लिखना होता है 2 टॉपिक। तो जब निबंध वाला आता है तो फिर अपनी भाषा का जो प्रवाह होता है वो कई गुना बेहतर होता है। मैं तो मेरा कहना है कि सिविल सेवा, मेरे अपने अनुभव में, अगर मेरी इसमें शेख ही ना मानी जाए, मुझे आज तक सबसे सरल एग्जाम अगर लगा अपने लिए तो सिविल सेवा लगा। मैंने बीएससी किया जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री, 12वीं तक हिंदी माध्यम ही था। बीएससी में वो जूलॉजी बॉटनी वो जैसे जैसे अंग्रेजी से रटी रटाई, मुझे कुछ भी याद नहीं है, वो समझ गए ना, उसका कोई असर नहीं। लेकिन 12वीं तक जिस भाषा में अपने पढ़े, तो ये वाला पक्ष, तो अब उसमें जब आपको निबंध लिखना होता है या दूसरा लिखना होता है तो बहुत सहजता से, और बच्चे नंबर बहुत अच्छा ले आते हैं। इसलिए ये ऐसा चुनाव। अब आता है अगला प्रश्न कोचिंग का। दोस्तों, मैं ट्यूशन और कोचिंग के सख्त खिलाफ हूँ। बावजूद इसके कि मैं 4 साल से क्लासें लेता हूँ सिविल सर्विसेज की, बुलाते हैं वो, अच्छा लगता है। जो 300 की क्लास होती है, 400 की क्लास होती है, हिस्ट्री की, करंट अफेयर्स की, उसमें जाता हूँ। लेकिन मेरा मानना है लॉकडाउन के दौर में तो यह और भी मुश्किल हो रहा है। इसलिए लॉकडाउन की एक बहुत बड़ी आप इसका फायदा उठा सकते हो कि घर पर अगर आप हैं तो ये पढ़ाई के लिए आपके लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि सिविल सेवा एक तरह की एकाग्रता मांगती है। एक निश्चित, आप अपने कमरे में घिरे हुए हैं और किताबों को पढ़ रहे हैं। आजकल यूट्यूब पर कितना मसाला है, तो कोचिंग के जाने से पहले ये कदम। और मैं फिर ये कहूंगा, आपकी दिशा आपने सोसाइटी बनाई है। दूसरा, मैं अपने अनुभवों को भी शेयर कर रहा हूं। मुझे सबसे बड़ा फायदा मिला हमारे ग्रुप का, जो हमारे दोस्त थे। आप अन्यथा न लें, एक भी हमारे ग्रुप में उस समय ऐसा नहीं हुआ कि जो पास न हुआ। अभी कुछ दिन पहले डीडीए का चेयरमैन था बलविंदर, सेक्रेटरी बना विचार। अभी जैसे ही मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ तो जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री वाले सारे दोस्त, जिन्हें पता होता है कि इस बच्चे का हो गया क्वालिफाई, तो वापस में जुड़ जाते हैं। और फिर वहीं के लॉन में बैठ के गरीबी की उन स्थितियों में, जैसे होता है ना कि 3/6 चाय, समझते हैं ना, 3/6 चाय, मतलब 3 चाय के पैसों में वो 6 कपों में डालने वाला, और उसी लॉन पर बैठ के, तो वो जो डिस्कशन होता है उससे बचिए नहीं। आपस में आप डिस्कस करेंगे तो आपको
अभी अपना ऑप्शनल तैयार करने में भी थोड़ी सी दिशा मिल जाएगी, बजाय कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आंख बंद करके आपस में बात करोगे किसका कितना स्कोर है, कैसे कैसे। तो ये जो ग्रुप की डिस्कशन होगा, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। और फिर निश्चित रूप से कोचिंग की भी जरूरत आजकल हो चुकी है, क्योंकि कई बार वो करंट अफेयर्स और इन सब सारी चीजों की एक से एक है। तो ये फैसला आप अपना करें, लेकिन पहले कदम के नहीं कि सीधे ही आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में ना, पहले ये फैसला कि कौन सा विषय रहेगा, माध्यम क्या रखेंगे, इन सारी चीजों को लेकर आप बढ़े। कॉलेज की लाइब्रेरी को मैं चाहूंगा कि मैं प्राचार्य जी से अनुरोध करूंगा कि उसमें जर्नल्स आए, पुराने विद्यार्थियों को भी अलाउ करें और उसको जितना एनरिच कर सकते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा एक पार्ट प्ले करता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के उन दिनों 79 के उसमें नहीं खुलती थी, तो हमने कहा था 12 बजे तक खोले, तो 12 बजे तक भी खोल दी थी उन्होंने। एक उसका एक अलग आनंद होता है। उमेश ने मुझे एक प्रश्न भेजा था, अभी मैं आपके प्रश्नों को अगर लेने के बजाय इन 2 प्रश्नों को मैं छोड़ रहा हूं। उन्होंने कहा कि सेवा काल में क्या क्या दबाव होते हैं और क्या सिविल सर्विसेज विशेषज्ञ होते हैं। मुझे लगता है कि अगली बार जब लंबी मीटिंग होगी कि सिविल सेवा के दबाव क्या होते हैं, इसका तो हम तब जब थोड़ी सी 2 कदम और आगे बढ़ जाएंगे। दबाव कहाँ नहीं होते? क्या आपके प्राचार्य जी के पास दबाव नहीं होंगे? किस बच्चे का एडमिशन कर लो जिसकी 5% कम है, वो आपसे कहेगा कि नहीं मैं इसको स्पोर्ट्स वाला ले आता हूं। और 10 साल पहले मुझे पता है, मेरे भी भाई बहन सभी यूनिवर्सिटी में है, कि एक दिन एक लड़का आया 80% की मार्कशीट लेके, अगले दिन वो 85% की लेके आ गया। समझ गए ना? तो अगर आपके पास नैतिकता है तो वो दबाव हर जगह होते हैं। सिविल सेवाओं में ज्यादा मौका होता है, तो वो दबावों की बात क्या होती है वो अनुभव बाद में कभी शेयर करेंगे। लेकिन अगर आप मजबूत हैं तो इन दबावों को झेलने में कोई दिक्कत नहीं आती। एक प्रश्न उसने किया है कि सिविल सर्वेंट अपने को ज्यादातर विशेषज्ञ मान लेते हैं। जो अखबार पढ़ते हैं रेगुलर, वो जानते होंगे कि दिल्ली में बैठे हुए, मान लो मैं आज रेल मंत्रालय में हूँ, इसका आज मैं उदाहरण भी दूंगा आपको। मैं समय शायद एक्सीड कर रहा हूँ, मैं अगली 5 मिनट में अपनी बात को समेटता हूँ, क्योंकि मैंने घड़ी अभी देखी है। जी तो सर, अभी समय है। अच्छा ठीक हमारे पास। ओके गुड। इसमें विशेषज्ञ वाला ये वाला जो पहलू है ये डिबेटेबल है। ये सच है, अभी प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि सिविल सर्वेंट को अपने को टटोलना होगा कि आज वो इलेक्ट्रॉनिक विभाग को संभाल लेते हैं तो कल को वो डॉक्टर विभाग को भी, अगले दिन रसायन उद्योग को भी। ऐसा वाकई है, क्योंकि हायरार्की में जब आप अपने बैच से चलते चलते जाते हैं तो अचानक ही आपको पता लगा है कि मुझे सेक्रेटरी वन विभाग बना दिया। मैं थोड़ी देर के लिए मान लीजिए रुचि की पढ़ाई दिल्ली में हुई, उसके बाद MBA करने वो हार्वर्ड चली गई, लौट के आई, सिविल सेवा दी। उन्हें गांव के देश के जंगलों के बारे में कुछ नहीं पता, उन्हें पहाड़ों के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं सीनियरिटी से उन्होंने ये कर दिया है कि उन्होंने कोई सर्टिफिकेट कोर्स या कोई वहां पे हार्वर्ड में जाके किया था, तो वो वन मंत्रालय की सेक्रेटरी बनी सर्वे सर्वा। या कई बार अचानक ही किसी को बना दिया कि रेलवे बोर्ड का चेयरमैन बना दो। रेलवे एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, पटरियां बिछाना, पुल बनाना, उसकी कोऑर्डिनेशन, फेयर कंट्रोल, एक्सीडेंट, फिर उसके बाद में अभी स्पीड ट्रेन हैं, कई तरह के इंजन हैं, डीजल इंजन हैं, स्टीम इंजन हैं। जब तक उसको सीखेगा, ऐसा नहीं, ये मानना है कि एक विशेषज्ञता होती है जो सीखती है, जो मैनेजमेंट का एक वो है कि एक अच्छा मैनेजर चीजों को संभालता है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट बड़े टेक्निकल होते हैं। इसलिए लेकिन यह ऐसा मान लेना कि उसको वहां बिठा दिया जाए, यह भी एक दुर्भाग्यपूर्ण। हालांकि इसके दोनों पक्ष हैं। जब ICS था तो ICS में ब्रिटिश टाइम पे हमें अनुभवों का ऐसा दायरा दिया जाता था, ये जिससे कि हमें एक ऐसी विशेषज्ञता, एक अच्छा मैनेजर जो क्विक डिसीजन ले सकता हो तुरंत, जो लोगों के साथ एक बराबरी का व्यवहार करता हो, जो बेईमान न हो,
जो अपने को एलीट न बनाए, एक वो जो गुण होते हैं अच्छे प्रशासक के, अगर वो है तो वो सफल हो जाएगा। लेकिन कुछ टेक्निकल चीज ऐसी है कि उनको नहीं। तो ये विशेषज्ञता वाली जो लड़ाई और डिबेट है ये लगातार चलती रहती है और आने वाले दिनों में शायद इसमें, इसीलिए लेटरल एंट्री की अभी शुरुआत हुई है और मैं इसका स्वागत करता हूँ। दैनिक भास्कर ने मुझसे कहा था पिछले साल 2-3 लेख लिखवाए थे। मैं स्वागत इसलिए करता हूँ कि जो एक्सपर्ट है, मैं इसका आज का एक ताजा उदाहरण दे देता हूँ। आज के दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट है कि 12वीं की परीक्षा के जो कि कैसे उनके नंबरों को काउंट किया जाए, उस पर एक रिपोर्ट और क्रिटिकल रिपोर्ट है कि उसमें जो लोग 12 शामिल हैं उनका किसी का भी अनुभव 2 को छोड़ के उस स्कूली एग्जाम और उसके साथ नहीं है। सिर्फ इसलिए कि मैं केंद्रीय विद्यालय में संगठन में हूं, उसको डाल दो किसी उसको, क्योंकि वहां पे उन लोगों को अभी पोस्ट किया है। ये इसकी एक जो विशेषज्ञता का जो प्रश्न था, बजाय इसके जो स्कूलों के जो जाने माने शिक्षाविद हैं, क्या इनके पास में, इस सरकार के पास में ऐसे लोगों की कमी है कि जो उससे सीधे सीधे जुड़े हुए हैं? क्योंकि ये छोटे छोटे डिसीजन, बहुत दूर की यात्रा, तो कहते हैं भर के तो बच्चों के लिए तो मंजूर कुछ भी होगा। मैं इसका उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि वैसा ही सिविल सर्वेंट्स का मामला है और इसके मैं सैकड़ों उदाहरण आपको सैकड़ों किताबों के बताऊंगा कि पहाड़ पर पाइपलाइन बिछाई जानी है और दिल्ली में फैसला हो गया और उनको अंदाजा ही नहीं था कि पहाड़ पर पाइपलाइन के लिए कितना ऊपर नीचे चलना पड़ता है। तो अनुभव से अगर उन लोगों को आगे होगा तो सिविल सेवा एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर सकती है देश के बड़े परिवर्तन के लिए। लेकिन अभी वो बातें बाद में, अभी तो हमें फिर तैयारी का मामला है। इंटरव्यू के लिए 275 मार्क्स होते हैं और बहुत सहजता से होता है। यूपीएससी के मेंबर्स बहुत सहृदय होते हैं। ये जरूर रिपोर्ट सुनने में आती है कि वो हिंदी माध्यम में थोड़े कम नंबर दे रहे हैं। ये एक, अब देखा जाए तो वहां पे बोर्ड में चीन के तो लोग बैठे नहीं है, पाकिस्तान के भी नहीं बैठे हुए, तो हमारे ही लोग हैं। और उन लोगों को जैसा हम कॉलेज में अंग्रेजी इलीट को थोड़ा ज्यादा भाव देते हैं, हम भी तो भाव देते हैं, तो यूपीएससी के मेंबरों के साथ भी थोड़ा सा ये है। और ये बात हम बार बार कन्वे करते रहे हैं, लेकिन इससे निराश होने की जरूरत नहीं है। क्यों? 275 का वो है, आपका 1500 नंबर तो अपना रिटर्न है। मैंने देखा है, हमारे जैसे बहुत लोग हैं कि ठीक है इंटरव्यू में जो मिला हमें एक रास्ता तो मिला। और मैं अक्सर इस बात को कहा करता हूं, जो अपनी, कि कम से कम शाहजहां रोड को नमन करने का मन करता है कि हम गांव से आते हैं, एग्जाम देते हैं और सफल हो जाते हैं। क्या मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बन सकता हूं जब तक किसी पार्टी के फोरम को नहीं ज्वाइन करूं, जब तक कुछ शागिर्दी को न करूं, जब तक चक्कर न लगाऊं, जब तक 10 साल एडहॉक न रहूं? मैं आपको इस बात को इसलिए कि एक शिक्षक बिरादरी के साथ में संवाद कर रहा हूं, तो इसलिए यूपीएससी हमें एक आम सम्मान देती है कि यस मैंने ये पढ़ाई की है, मैं बैठूंगा। और आप मान के चले, अंतिम बात, इस समय हमारे ज्यादातर लोग गांव और कस्बों के सेलेक्ट हो रहे हैं। यह अलग है कि वो गांव कस्बों के प्रतिभाशाली बच्चे पहले आईआईटीज में गए हैं, इंजीनियरिंग का 80% वो प्रतिभाशाली हैं, उनको अच्छी अंग्रेजी नहीं आती, ये मैं फिर से कह रहा हूँ, लेकिन वहां से और वो मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करते हैं और वो सिविल सर्वेंट। अब उसके बाद में समाज के लिए उनकी भूमिका क्या है, इस प्रश्न पर कभी बाद में विस्तार से बात होगी। आपने मुझे सुना धैर्य से, कुछ बातें, आज से उद्घाटन का वो है। अगर आप कुछ प्रश्न अभी करना चाहेंगे तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि इसके बाद मुझे किसी और जगह जाना है। जी धन्यवाद सर। सर्वेश, अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। दोस्तों सहजता से, अच्छा लगेगा। क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? कोई भी, मेरे लिए कोई ऐसा राशन कार्ड नहीं है सर। सर सबसे पहले तो नमस्कार करता हूँ सर। प्रारंभ में आपसे नमस्कार नहीं कर पाया था, हमारे जो टेक्निकल टीम है उन्होंने मुझे म्यूट कर रखा था तो माइक अनम्यूट नहीं हो रहा था। तो बाकी हमारे दूसरे अतिथि हैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। सर मैं एक जानकारी चाह रहा था, बेसिकली जानकारी
अपने लिए भी है और खासतौर पर जो आगे इस परीक्षा में के माध्यम से आगे आना चाहते हैं। मैंने कहीं सुना था, वो प्रामाणिक अप्रामाणिक तर अगर आप बता पाएंगे कि जैसे अभी साक्षात्कार तक जो है जो कैंडिडेट जाता है उसमें जो रेशियो है शायद 3:1 का है, कि 3 में से 1 का चयन होता है, ऐसा लगभग इस तरह ढाई और 3 के बीच का रहता है। हाँ, तो यानी 3 में से 1 का चयन हो रहा है, तो 2 लोग जो है असफल हो जाते थे। तो असफल होने के बाद यूपीएससी में वही जीरो और हीरो वाला मामला है। अगर असफल हो गए तो आप हीरो बन गए, और अगर वहां से अगर वापस आपका चयन नहीं हुआ तो आप पुनः जीरो पर आ गए, दोबारा से आपको प्रयास करना है। तो मैं ये जानना चाह रहा था, क्या ऐसा कोई अभी सरकार के द्वारा कोई ऐसा निर्णय हुआ है कि जो क्वालिफाई कर जाएंगे इंटरव्यू तक और जो बाई चांस वो सफल नहीं हो पाते हैं, जैसे 3 में से 1 सफल हो गए, 2 रह जाते हैं, तो ये सुना था कि शायद उनको भी कहीं किसी प्रकार से ऑब्जर्व करने की बात किसी दूसरे विभाग में या उसके समतुल्य कहीं। हाँ दर्शन जी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं जी, नहीं जी, जी, ये बात आपसे कई वर्ष पहले शुरू हुई थी, क्योंकि यूपीएससी एक बहुत कठिन परीक्षा है और हम कई स्क्रीनिंग के बाद एक अच्छे टैलेंट को चुन लेते हैं, और वो तीनों के तीनों अपने आप में बहुत अच्छे प्रत्याशी होते हैं। मैं आपको फिर से एक दावा कर सकता हूँ, फेल और पास होना एक अलग मामला है। वो हमारी एग्जामिनर की कॉपी, उनकी प्रतिभा में कोई कमी नहीं होती, मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ। और इसीलिए प्लान था कि बहुत सारी पब्लिक अंडरटेकिंग्स, बहुत सारी अगर वो लेना चाहें तो वो, लेकिन कुछ कदम आगे बढ़ नहीं पाए ये सरकार की। अगर इस बीच में कुछ ऐसा हुआ है, पिछले वर्ष अहमदाबाद की एक संस्था ने उन बच्चों को जिन्होंने इकोनॉमिक्स से दिया था उनसे आवेदन मांगे थे कि जिन्होंने अगर क्वालिफाई इंटरव्यू दिया है दे कैन अप्लाई। 28 पोस्टें थी, एक फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन था, उन्होंने उसे उसमें से स्क्रीन करके लिया। ऐसे कुछ और भी किए हैं अभी छोटे लेवल पर, लेकिन अगर ऐसा हो तो यह अच्छा होगा। लेकिन प्रश्न दूसरे हैं, सिविल सेवाओं की कार्यशैली उनके थोड़ा अलग है, और लेकिन और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ये एक अच्छा सुझाव, और इस पर जितना जल्दी अमल किया जाए उतना अच्छा है, क्योंकि बजाय कि उन बच्चों को जीरो बना दिया जाए, आगे अगर उनके लिए कुछ रास्ता रहेगा तो आप सब, मेरा तो मानना ये गांधी जी की तरह कि एक पत्र जरूर यूपीएससी को डाल दीजिए। अगर आप नहीं डालेंगे तो कई बार कैबिनेट मंत्रियों ने कहा है, एक बार मुरली मनोहर जोशी तो उनके बोले भाई जो कहते हैं वो सोचते ही रहते हैं। अगर हमारे पास एक भी पत्र आएगा कि हमें इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में चाहिए, हमें हिंदी माध्यम में कम अंक मिलते हैं, लेकिन हमने शायद अपने विद्यार्थियों को सड़क पे आंदोलन करना सिखाया है, कलम कागज और उसके रास्ते अपनी बातों को आगे भेजना नहीं सिखाया। मैं तो कहूंगा कि आप में से जो भी सुन रहे हैं इस सुझाव को जो दर्शन जी का है, बाकायदा आजकल पोस्ट कार्ड अभी भी हैं, जो भी चिट्ठी, ईमेल नहीं, ईमेल पे मेरा भरोसा नहीं है कि जिस बाबू के पास जाएगा वो बाबू उसको डिलीट कर देगा या क्या कर देगा, अभी नहीं पहुंचेगा। ईमेल से भी आप कर दें, वो भी एक वो है, लेकिन अगर आप एक चिट्ठी लिखेंगे तो ये अच्छा कदम होगा। धन्यवाद दर्शन। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत ही। रुचि, और कोई आपका प्रश्न? रुचि कहाँ की रहने वाली हो? सर मैं गुरुग्राम से रहने वाली हूँ। कहाँ? गुरुग्राम से। अच्छा, हरियाणा से। हाँ जी। और क्या सब्जेक्ट में पढ़ाई की? सर मैं बीए प्रोग्राम कर रही हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा। क्या क्या सब बीए प्रोग्राम में? इंग्लिश है और सोशियोलॉजी। ओनली 2 सब्जेक्ट्स? हाँ जी। अच्छा, तो सोशियोलॉजी। हाँ जी। हाँ, तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन आप चुन सकती हो। विनायक, आपका परिचय? आप जूलॉजी। नमस्कार सर, मेरा नाम विनायक है, मैं धौलपुर राजस्थान से हूँ जी, और जिससे मेरा सब्जेक्ट जूलॉजी है। तो बीएससी हो गया पूरा? नहीं सर, मेरा बीएस चल रहा है, मैं सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर, तो जूलॉजी ऑनर्स है? जी सर। अच्छा, बहुत अच्छा। जूलॉजी भी उतना ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। चलो, सभी अपने अपने हिसाब से चुन सकते हो, और अच्छा सब्जेक्ट आप लग जाइए। तो मैं एक और भी कहूँ, टैलेंटेड से ज्यादा ये मेहनत का एग्जाम है, समझ गए ना? टैलेंट तो ये एक खरगोश वाला मामला है, ये कछुए का है। थोड़ा सा आप थोड़ा सा लगातार पढ़ते रहेंगे, लेकिन
अपने दिमाग में ये मान के मत चलिए कि हम हाकम बनेंगे। उत्तर भारत के बच्चों को जाने कहां से ये होता है कि मेरे पास बड़ी गाड़ी होगी। वो किसी अपने पड़ोसी को देखते हैं कि वो सिविल सर्वेंट बनते ही उसकी पैंट का साइज 32 से लेकर से हटकर 52 तक पहुंच गया, गाड़ी आ गई। ये देश का भविष्य नहीं है। इसीलिए ऐसे हर साल 500 आते रहेंगे और इस देश को रौंदते हुए चले जाएंगे हर जगह। सिविल सेवा का अगर है, और ईश्वर करे इसमें कुछ नैतिकताएं आए, क्योंकि अगर आपने पता होगा कि डीएम के व्यवहार से लेकर हमारे सिटीजन्स का, तो इसलिए अगर इसको लेके चलेंगे तो मुझे और भी खुशी होगी। लेकिन मेहनत का है, रेगुलर 2 अखबार कम से कम, लाइब्रेरी अगर कोई ज्वाइन करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। बहुत सारे ऑनलाइन ही पढ़ते हैं, मुझे लगता है कि ऑनलाइन पढ़ना में उतना नहीं वो करूँगा। आप अखबार की कटिंग को रख लेते हैं, सारा कुछ है। तो ये मेरा सुझाव है। थैंक यू। Thank you very much, sir. Proceeding further, I would like to request our guest of honor, Mr. Surendra Singh, to honor us with his guiding light. Briefing about him: he's a retired IAS officer and is currently posted as the chairman of the State Food Commission in Himachal Pradesh. अरे नमस्कार सुरेंद्र जी, जो मेरे पुराने दोस्त हैं, नमस्ते तो ले लो। जुड़े फिर से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। मैं फिर से कॉल कर रहा हूं। हमारे अच्छे दोस्त हैं, खाली इन्होंने आपने सुरेंद्र बताया था, वरना इनका नाम तो मुझे बोलने में ही मेरी जीभ कई बार जो है फटक फटक हो जाती है। क्या सर डिस्कनेक्ट हो गए हैं क्या? Yes, sir. Actually, he has some network issues, so we are waiting for. अच्छा, ठीक है। मैं भी बस इंतजार कर रहा हूँ इनकी नमस्ते करने का। आखिर 2 दोस्तों को आपने काफी दिन के बाद जो मिलाया है। सर मैं भी काफी दिनों बाद मिला हूँ आपसे। अरे आपको विश्वविद्यालय के लोगों को कहाँ समय होता? अरे नहीं, ऐसा है ये लॉकडाउन बीच में आ गया है ना, इसने बड़ा सताया सर। लेकिन मैं कहूँगा अगर प्राचार्य जी आपके यहाँ पर हैं तो आपके यहाँ जो भी पॉलिटिकल साइंस और वो जो पढ़ा रहे हैं ना, उसको बाइलिंगुअल में पढ़ाने की अपने लेवल पे कोशिश करें। बच्चों के ये फायदेमंद होगा, उनकी समझ के लिए भी। हम उनकी अंग्रेजी ठीक करने की तरफ ध्यान उतना न दें जितना कि कंटेंट की तरफ दें। और ये हर काम प्रधानमंत्री जी नहीं करेंगे, शिक्षा मंत्री नहीं करेंगे, कुछ हमें अपने कॉलेज के लेवल पर भी व्यक्तिगत रूप से करना पड़ेगा। और मान के चले, मैं बताना चाहूंगा हमारे यहाँ पर हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में और बीए प्रोग्राम के कोर्सेज में हिंदी माध्यम से ही पढ़ाया जाता है। दोनों तरह के बच्चे पढ़ते हैं हमारे यहाँ पर। अच्छा सर, मैं लेकिन ये जानना चाहता कि अगर आप थोड़ा सा कोई डेटा दे पाए कि कितने बच्चे फाइनली हिंदी माध्यम ऑप्ट करते हैं एग्जाम और कितना अंग्रेजी माध्यम करते हैं। मैं वैसे ही मेरे इस डेटा से मेरी सिर्फ रुचि ये है कि 40-60 का रेशियो रहता है हिंदी में, 40 और 60 इंग्लिश में। 40 और 60। हाँ, श्यामलाल कॉलेज में स्थिति 80 तक पहुंच गई है, 80 इंग्लिश में, जो कि पहले 80 हिंदी में थी। मतलब मैं पेरिफेरी के कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ सर। जबकि जो कैंपस में लगभग पहले साल तो बच्चे बैठते हैं, दूसरे साल से फिर उनको लगने लगता है कि अगर मुझे एमए करनी है तो वो, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भाषा का इतना प्रश्न वो नहीं है जितना कि उनकी सहजता से उनके पढ़ने का आनंद और उनको क्रिएटिव बनाए रखना है। शायद दुनिया के सारे कि जिस भाषा में व्यक्ति सोचता है उसी भाषा में उसको आगे बढ़ना चाहिए। तो हमारे जो बच्चे देहात से आते हैं, हमारे यहाँ हरियाणा से, बिहार से, यूपी से आते हैं, वो सोचते हैं हिंदी में। तो हिंदी माध्यम से अगर वो अपना सिविल सर्विस में जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। और बहुत से बच्चों में एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है हिंदी होने के कारण, जैसे आपने हाईलाइट किया इस बात को कि शायद वो कभी भी इस चीज को ना कर पाए। तो बहुत अच्छी बात है कि अपनी भाषा के जो उसको विचार को रखे सामने और ऐसी झिझक को छोड़कर और जिस भाषा में वो कंफर्टेबल है उसी में आगे बढ़े, तो बहुत अच्छी बात हो गई है। बिल्कुल सर, आप सबके अनुभव रहे हैं कि हम क्लास में प्रश्न तक नहीं कर पाते। रुचि, जब आप यहाँ दिल्ली पहुंची तो क्लास में प्रश्न पूछने में अंग्रेजी में पूछेंगे या हिंदी में पूछेंगे? मैं हिंदी में पूछूंगी, क्योंकि वही चीज
आज तो आपने हिंदी, हाँ अक्सर बेटा ऐसा है कि एक विशेष में यूपीएससी से सेलेक्ट हुए लोगों के अनुभव, क्योंकि उनके 3 साल 5 साल कोर्स डायरेक्टर रहा, सेलेक्ट होने के बाद एक लड़के ने बताया कि सर मैं बीच में बैठ जाता था, और तब तक अब रटने की अपने मन में वो कोशिश करता था कि मुझे क्या बोलना है। आप समझिए ना, सबकी रटी हुई। तो ऐसी शिक्षा नहीं चाहिए हमें, शिक्षा बहुत सहजता से चाहिए, जो बहुत इनफॉर्मली हो, जिसके अंदर कोई ऐसी बनावट ना हो, तब शायद हम शिक्षा के मिशन को पूरा कर पाएंगे। और ये भाषा का मसला विश्वविद्यालय और स्कूली शिक्षा से ही सुलझेगा, ये आधे मन से नहीं। अभी मेरी बात जो होती है अक्सर कई लोगों से, हमारे जो सिविल सेवाओं में हैं, बोले अरे भाई हमारे बच्चों को विदेश जाने का मौका तो भी मिल जाता है, जैसे कि उन्होंने बच्चे विदेश जाने के लिए पैदा किए हैं। आप समझ गए ना, मेरा देश पहले है। अगर उनको एक अच्छा नागरिक बनना है उसकी वो और उसमें उस भाषा का, अगर आपकी क्लास में महाराष्ट्र का कोई है, गुजरात का कोई है, उसके भी शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, तो हमारी भाषा और संपन्न होती है। हरियाणवी भाषा अगर कोई बोलता है, उसकी अंग्रेजी में अगर हरियाणवी टच है, तो मैं तो इसे बहुत अच्छा मानता हूँ। मेरी भाषा में अगर बुलंदशहर का टच नहीं होगा तो क्या होगा? क्या कैलिफोर्निया का टच होगा? मैं उस पर फक्र करता हूँ। उन लोगों को मैं इसलिए कि जो अंग्रेजी के किसी ऐसे तो उसको एक वो ब्रिटिश स्टाइल में पढ़ाने के लिए, और ये हमारे स्कूलों में, और ये हमारे एज ए पेरेंट्स के नाते भी हमें सोचने की जरूरत है कि अपने बच्चों को, बच्चे किताबों से दूर अगर हो रहे हैं तो इसलिए कि उनको बहुत शुरू से ही अंग्रेजी ज्यादा लाद दी जाती है। मेरा फोन आ गया दोस्तों, फिर मिलेंगे और फिर आपके प्राचार्य जी से मिठाई भी खाएंगे प्रोफेसर बनने की। नमस्कार, मुझे इजाजत। बिल्कुल सर, नमस्कार सर, नमस्कार, धन्यवाद सर। सुरेंद्र जी को मेरा नमस्कार कह दीजिए, क्योंकि वो अभी जुड़े नहीं। ठीक है। हाँ रुचि सर अभी जुड़ गए हैं क्या? आ गए? हाँ जी। अच्छा सर, ठीक है सर। सर नमस्कार सर, स्वागत है सर। आपने मेरे को अनम्यूट नहीं किया था। हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। So guys, I would like to start straight away. Yes sir, I would introduce. Okay. It's your nice initiative that you are starting Disha. I don't know what is your ultimate how you plan to go ahead and with your which Disha you are going to take. Anyway, that's good initiative that जो हमारी विचारधारा से जुड़े लोग हैं वो इस तरह का एक प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मुझे लगा मैं बहुत लंबा लेक्चर दूंगा, उससे अच्छा है कुछ मेरे को क्वेश्चन भेजे थे आपके यहाँ से, मेरे को लगा कि उन क्वेश्चंस को लेना, उससे हम स्टार्ट करें और उसके बाद क्वेश्चन आंसर करें। दैट विल बी बेटर मोड इंस्टेड ऑफ वन वे ट्रैफिक दैट आई विल बी लेक्चरिंग यू एंड आप सुनते रहेंगे। IAS officers never retire. What is your opinion about it? Is it true? यही क्वेश्चन है आपका? Yes. Am I audible ना? Yes sir. Who is the host? Ruchi? No sir, I'm not. Pardon? No sir, I'm not the host. So who's the host? Whom should I ask? Our society president उमेश जी हैं the host. जी सर। जी मेरे को visible, I don't know why. अपना वीडियो ऑन करें उमेश। जी सर। Dr. Umesh Pandey, how do I start? Should I start with questions? सर आप पहले अपना वक्तव्य रख दीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चंस आंसर कर दीजिएगा।
मुझे ना रियली बैकग्राउंड थोड़ा सा आइडिया नहीं है कि आप किस तरह से किस बारे में जानना मेरे यहाँ पे चाह रहे हैं। नेटवर्क इशू है, आप समझा दीजिए थोड़ा सर को। हाँ जी। Sir, I would introduce you. Guys, I would like to introduce our guest of honor. First of all, he's Mr. Surendra Singh. And briefing about him, he's a retired IAS officer and he's currently posted as the chairman of the State Food Commission in Himachal Pradesh. Sir, we are honored to have you here. And we have some questions for you. You may answer them or you may share your experiences also. Thank you. In fact, I can answer on my way to answering the question. I can give my experiences and my opinion that both will be there. So I thought that's appropriate to answer the questions because that will initiate a dialogue where you are really interested to listen to. Because if I start off my own, that will be a little difficult and different. And maybe not relevant the way you want it. So you can ask me further questions. That will be. So we have collected a bunch of questions from the aspiring civil servants, and here we go. Question number 1: IAS officers never retire. What is your opinion about it, and is it true? This is a very. I don't know what was the context of asking this question. There is a apprehension that's what I understand, that somebody, if is asking question, it can be two ways. One is to know that even after 60, they rejoin some tribunal, some commission, and they keep on working. Some people object to that once they are retired, they should really retire and do nothing. But I have a different opinion. I know a lot of people, yes, a lot of us, they get re-employment and get some work in commission, tribunal, or associated with the government in any other form. But large number of us, they are working outside also. It's not that they are in government also. In people in government are visible. First thing I'll tell, nobody retires. Somebody, if like age is 60, we retire from government service, that's okay. But after that, we are not really retired. I was not employed for 3 years, but do you think I was not doing anything? I was doing some social work. There are a lot of organization. हमारे विचारधारा की भी थी और भी थी. Whatever I had interest in, like I had interest in traditional food and food safety. So I created in that because basically I was food technologist, and during my civil service career, I couldn't do much in that area. So I was doing work in that. But even after most of the jobs, tribunal or commissions are up to 65. Even after 65, people are very active. They do something, other things also for the society, because then that is the time you get time to do something different, where you are not bound by conduct rules, service rules. So you have independence of doing something and contributing to the society. So I think people should not retire, whether they are IAS officers and others. But yes, re-employment they get because they have work experience of so many of years, and society should utilize that. And it should be utilized, whichever way, whether you give them job, you give them something else, or involves without even paying them something. So we in Sankalp also started that forum for former civil services, of which I was the co-convener. Idea was only this, that bureaucrats have been working for so many years, so long, such a vast experience, it should not go waste.
So I really agree with that. They never retired and they should never retire. That is my opinion. Moving on to the next question. What are the challenges and the cooperation between bureaucrats and politicians, and how can they be tackled effectively? I have a opinion that bureaucrats, once they join service, they mostly work as there are two very good postings when you are, initially you do some field posting and you become DM. DM is really your creativity is at your peak. And then as a secretary of the department, you are basically involved with major decision making. Other than that, you are confined to your desk jobs, which is very, very inhibiting your, it kind of stops your growth or your interaction with the society as such. Politicians, they really live with people. A lot of people come and meet and complain to them, and they have to seek their votes. They are answerable to people. Bureaucrats are not actually. So there sometimes there becomes some difference kind of thing. It's okay that we are there to see that rules are followed. That's all. But sometimes we bureaucrats also become too much of babu. That rule is ultimate. Rule is not ultimate actually. Ultimate is the welfare of the people. In that, I feel that politicians are better prepared. So if there is a sensible civil servant, he will always go for a close contact with politicians. I agree that there are sometimes politicians are corrupt. So are our seniors also, juniors also. Bureaucrats also, they are corrupt. So we should work in a way where we should not allow them to do something wrong, which is outside the rule. But at the same time, we should appreciate their point of view, that they are working for the people. They have to seek vote. Vote means they have to do welfare of the people. If they are not able to deliver, it is their failure, it is our failure, it's failure of the government, and we both are part of the government. So we have to work together. If you see, there is a famous series, video series also is shown. Yes, Minister, there was a book also on this, on British relationship between minister and his secretary. So that relationship has to be maintained where we work in tandem with not against the wishes of the people, but for the betterment of the people, in tandem and in cooperation with the politician. That is my opinion. We should not work in isolation, that I am supreme, whether it's a politician, whether it's an officer. If we don't have that kind of ego issues or issues of understanding, the work is really progresses very well. That is my opinion. Next question, please. Yes, sir. So what can we start now which will be effective and productive in the preparation time? What can we start now which will be effective and productive in preparation time? No, I didn't really follow this question, that when should we start, or what can we start means effective and productive in preparation time. Yes, sir. Like what? So preparing for the civil services. Yes. You want to know how to start, and we have to start with what first. पहले किसकी तैयारी करनी, कैसे करनी है? एक तो थोड़ा सा ना, there is a stereotype preparation of civil services, which I find very different and difficult to, because you must have seen a lot of people preparing, joining various coaching classes. You are from Delhi. I think there may be close to
4 or 5 lakh students in Delhi even. They are sitting on North Campus, South Campus, this area, Kingsway Camp or some other places. They are staying there so many years. Even university hostels they are, and preparing for 4 or 5 years, doing some courses or sometimes doing no courses. And there are a lot of coaching centers they have come up. Really, that's not the understanding, and that is not the requirement also for clearing civil services. We have to understand that what are civil services and what is required from me. For that, you can see the past trend. There are different stages, prelim, main, and interview. For each stage, requirement is different, totally different, if you see. So how do you prepare for prelims, which is the first entry point? If you don't clear that, you cannot go to the main examination. So you should have overall general understanding of the things. So if you have read your during 9th, 10th, 11th, 12th, very well your NCERT books and things like that, then your basic understanding of history, Indian history, economics, mainly Indian agriculture and Indian economics related to the basic principle of economics, geography, basic terms, Indian and world geography, political science, with special reference to constitution and Indian relationships, whether it's a foreign relationship within the country also, outside the country also, our security issues, our environment issues, they are all general knowledge things. So if we enhance our general knowledge, and that cannot be done overnight. That is, if we have studied, our basis is strong. If we have read those NCERT books properly during our younger days, lower classes, 9th, 10th, 11th, 12th, or even sometimes 6th, 7th, 8th, they contain certain concepts and ideas and on science, on history, on political science, every field. So then you are well prepared. So don't, my request to you people is, don't get overawed or bogged down. इस चीज से घबराना नहीं कि बहुत बड़ा कोर्स है. एक तो मैं I'll tell you one बड़ी सिंपल सी चीज है कि I'm from the government school. People are from ordinary background. They clear if they have determination to clear. उसमें कई लोग ऐसे रहे कि they couldn't do well in 10th, 11th, 12th, quite bad marks during graduation or sometime after graduation. They thought कि मुझे पास होना है. I have no alternative in life. मेरे को पास किसी ना किसी तरह होना है इसमें. Once they have thought, they prepare really well, because then they go back, they see किस subject में हो सकता है. I am good in history because मेरे को अच्छी लगती थी, तो मैंने Indian history and ancient history है या modern history है, मैंने अच्छी पढ़ी. But शायद मैंने उस वक्त जब I was in school मैंने geography पे ध्यान नहीं दिया या मेरा interest नहीं था. But you need to know something for examination point of view. Then you go back to the syllabus. सबसे basic मैं I'll tell you, दो चीजें बहुत basic है अगर आपने prepare करना है. एक तो आप पहले कुछ ना करें, syllabus देख लें. Main जो syllabus है वो mains का रहेगा. और जो main का syllabus है बड़ा कम बदलता है हर साल. Every year there is a little bit of change. GS के पेपर हैं आपके 4, उसमें कोई ना कोई changes होते रहेंगे, but very nominal changes. But more or less the syllabus remains same, because they want to see your general awareness, general knowledge. How do you know, how much you know about the country, our relationship with the
different countries, and where do we stand. तो वो knowledge आपको gain करनी है. So then you go back. Sometimes you may have to study the class 6, 7, 8 book of NCERT because you were not careful when you were student. या आपको लगा कि या ज्योग्राफी तो मेरे को बिल्कुल नहीं आती, या इकोनॉमिक्स मेरे को नहीं आती, मेरे को साइंस मैंने पढ़ ली, अब मैं साइंस में आ गया या कहीं और आ गया, वहां मैंने पहले भी नहीं पढ़ी, मेरे को इंटरेस्ट नहीं था. लेकिन वो बेसिक तो एक पहले तो आप सिलेबस डाउनलोड करें, उसके बाद एक स्ट्रेटेजी अपनी बनाएं कि मैंने कैसे तैयारी करनी, क्या मेरा वीक एरिया, क्या मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है. फिर मैं तैयारी मेरे को करनी है प्रीलिम्स के लिए, जिसका कोई दो, यू मस्ट बी अवेयर कि 2 पोर्शन है, एक जनरल स्टडीज का है, एक दूसरा है विच इज क्वालिफाइंग. तो जो आपका एप्टीट्यूड देखता है बेसिकली, तो उसमें इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट समटाइम्स पीपल फाइंड सम एरियाज डिफिकल्ट, सो यू कैन आइडेंटिफाई कि कौन सा एरिया डिफिकल्ट है. उस हिसाब से आपने उसको ज्यादा पढ़ना है. जैसे थोड़ा बहुत मैथ तो आई विल नॉट से दैट इज अ वेरी बेसिक मैथ, बट समटाइम पीपल फील दैट्स वेरी डिफिकल्ट, वैसे वो क्वालिफाइंग है. फिर जनरल स्टडीज में ये देखना है कि आपको कितना देयर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ हार्ड वर्क. एरिया कोई डिफाइंड नहीं है, बहुत बड़ा वास्ट है. यू हैव टू यूज कॉमन सेंस कि कौन सी चीजें अनइम्पॉर्टेंट है, कौन सी इंपॉर्टेंट है. ज्योग्राफी मैंने पीएचडी नहीं करनी है, मैंने कोई एमफिल भी नहीं करनी है, एमए भी नहीं करनी है. मेरे को ज्योग्राफी इतनी आनी चाहिए जो मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दैट असेसमेंट यू हैव टू डू योरसेल्फ कि मैं कहाँ, वेयर डू आई स्टैंड. और यू कैन डिस्कस विद सम टीचर, विद योर पेरेंट्स और सम फ्रेंड्स एंड इवैल्यूएट योरसेल्फ. तो तैयारी के हिसाब से तो देन अकॉर्डिंगली यू प्रिपेयर फॉर. एंड you said what is the right time to prepare. You know, if somebody has, किसी को अखबार पढ़ने का या न्यूज सुनने का या डिस्कशन का शुरू से ही शौक था, उसका वैसे इंटरेस्ट रहा, तो he or she could prepare very well otherwise, because उनको फिर कम मेहनत करनी पड़ी. कुछ है जिन्होंने कहीं और इंटरेस्ट था या खेल में, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, they were doing very well. Unfortunately, they couldn't spare their time for these kind of studies, so they have to take care of that कि मेरे को क्या करना है. तो उस हिसाब से हर आदमी का ना, हर इंडिविजुअल का अलग, हर इंडिविजुअल का से you cannot have a stereotype solution for everybody for how to prepare for civil service examination. हर एक आदमी की कैपेबिलिटी अलग है, उसकी नॉलेज अलग है, उसको अपना इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, चाहे किसी का साथ लेके चाहे अकेले. उस इवैल्यूएशन के बाद बट द बेसिक इज सिलेबस देख के आपने उसको तैयारी करनी. ठीक है जी. होप आई वाज नॉट टू लॉन्ग. Thank you. Sir, kindly share your experience of transformation in the personality which you felt from day one since you started the preparation to present day, if there are any. There has to be transformation. When you start preparing, you should know that whatever exam, I'm not saying civil services, even if I'm preparing for army or preparing for legal profession, I have to condition that way. I have to start thinking कि मुझे उस प्रोफेशन में मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन है. आर्मी में रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट, सिविल सर्विसेज में रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट. सो मेरे को अपने मन को कंडीशन करना है उस तरह से, और एक ट्रांसफॉर्मेशन लानी है स्लोली कि इंटरव्यू स्टेज पे अगर तो मैं जाऊंगा ओवरनाइट, आई कैन नॉट चेंज माई सेल्फ. सो what is required at interview, what they ask and how to answer. So you have to start practicing that also, even day to day. When you are preparing for prelims, you have to write things so that tomorrow if you clear prelims, ये ना हो कि आपने prelim pass कर दिया
और आपने नॉलेज तो गेन कर ली, बट यू कैन नॉट पुट इट ऑन ब्लैक एंड व्हाइट। आप उसको लिख नहीं पा रहे कंसाइज तरीके से, यू डोंट नो हाउ टू समराइज एंड प्रेजेंट इन मैनर। सो दैट इज रिक्वायर्ड कि आप उसको किस तरह से, तो व्हेन यू स्टार्ट फॉर सिविल सर्विस, इट्स नॉट दैट मैं अभी तो प्रीलिम की तैयारी कर रहा हूँ, फिर मेन की तैयारी करूंगा, फिर मैं इंटरव्यू की तैयारी करूंगा। तैयारी इज कंप्लीट एंड डे टू डे यू हैव टू कीप प्रोग्रेसिंग इन एवरी फील्ड। तैयारी आप प्रीलिम्स की ही करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आप ये ध्यान देंगे कि मेरे को, बिकॉज दैट विल change your and tune your brain for the civil services. If you are not able to transform yourself, आप उस तरह से उस दिशा से सोचना नहीं शुरू करेंगे, तो एग्जाम पास करना इज वेरी डिफिकल्ट। एनीथिंग, आप आर्मी का एग्जाम देख लें, आप चले जाएं, इफ यू डोंट कंडीशन योरसेल्फ, यू डोंट थिंक in that place कि how I have to behave if I am an army officer or I am a civil servant, then you will not be able to improve. तो वो improvement slowly आपको लानी है। You said कि what transformation I see in my personality? Yes, when I didn't clear exam, or slowly you at every stage of exam also, when you go to interview for UPSC into in a big room, and there is a huge building with a very large roof and big high roof. So suddenly people are there with tie and everything, and talking in a very good English. And if you are basically from a rural background or a background where your English is not so good, then you get also demoralized that he's worn tie, you have not worn tie whole of your life, and for interview also you go without tie. It really doesn't matter. But then psychologically sometimes you feel that कि आदमी की इंग्लिश में बहुत फ्लुएंसी है, टाई भी पहनी है, और शायद एक दो उसमें सेंट स्टीफन और दो स्कूल के पढ़े हुए भी हैं, तो कई बार आदमी को वो कॉम्प्लेक्स आता है। You have to say to yourself, hell with this, I can do anything better in life. I have come here for interview. I'll take my interview. In case I fail, I'll do much better in life. So एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करना पड़ता है। आफ्टर यू जॉइन सर्विसेज, आई हैव सीन ए ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन। जो आप बात कर रही हैं ट्रांसफॉर्मेशन की, बिकॉज आई जॉइन सिविल सर्विसेज, सम वेंट टू रेलवे, सम वेंट टू इंफॉर्मेशन सर्विसेज, सम वेंट टू अदर सर्विसेज, एंड सम डिडंट क्लियर। यू नो, they were very intelligent. Some of them, you know, they were much more intelligent than us who cleared. There's a bit of luck also sometimes, I feel. We felt that they were intelligent than us. They should have cleared. They didn't clear, unfortunately. But the transformation starts. Once you start getting job, you are made to sit in a chair where people are expecting you will give orders. And people are ready to take orders, but you don't know what to do. आप नए डिपार्टमेंट में जाते हैं, you implement different acts. एक्ट की आपने शक्ल नहीं देखी, लॉ आपको आता नहीं है, you are a science student like me, so you don't know how to take. You have to learn, you have to work hard. I'm saying not only during examination preparation, even afterwards, sometimes you feel that my clerical staff or somebody else is much more smarter than me. So I have to reach his level. How do I do that? Because he knows his knowledge is much, he's working there for the last 5 years. I've just come. मुझे एक्ट की शक्ल नहीं पता है, तो एक्ट में लिखा क्या है मुझे, I don't know. So what you have to do is you have to really work hard and prove yourself. In proving yourself, you learn a lot. But you have to keep your mind and eyes open. एक आपको ये पता लगता है, because you meet lot of people. But when I say, जैसे हम ट्रेनिंग में we went to
we start observing also. During training, we had a police attachment. तिलक मार्ग में, तिलक नगर में एक डीसीपी थे, हमारी अटैचमेंट थी, चले जाते थे, रोज बैठ जाते थे बीच में, फिर आगे नीचे एसीपी के पास कभी थाने में भेज देते थे हमारे को ऑब्जर्व करने। एक दिन हम 2-3 हमारे बैच में बैठे थे उनके साथ। He was talking to us very nicely, good English, nice way of talking. Suddenly एक उनका ऑर्डर लिया आया, सिपाही कान में कुछ खुसर की, तो उन्होंने कहा ठीक है भेजो। वो आदमी भेजा और this fellow almost got out of his chair and started abusing in left and right. तो ऐसी abuses जो हमने सुनी नहीं। And there is a lady officer, IPS officer. I heard after putting in 5-6 years of service, I heard her talking to some people in a very abusive language. Sometimes that is required. You know, I felt that officer, suddenly he was very nice. We were having tea, अच्छी बातें हो रही थी. Suddenly he changed his behavior and he started abusing. And मेरे को लगा कि शायद पुलिस में मैं होता, मैं भी ऐसी लैंग्वेज यूज करता। लेकिन मैंने आईएएस ऑफिसर्स को ऐसी लैंग्वेज यूज करते नहीं देखा, पुलिस ऑफिसर्स को देखा है। Then the way the police personnel handles their situation and the civil servant handle, there is a lot of difference. अभी ऑब्जर्वर लगाए थे एक बार, जनरल ऑब्जर्वर इलेक्शन में आईआरएस ऑफिसर लगाए। नॉर्मली आईएएस लगते थे, उसके बाद आईआरएस ऑफिसर लगाए एंड दे रियलाइज कि दैट दे कैन नॉट परफॉर्म, अगेन दे वेंट बैक टू civil servant as a general observer. तो then I saw that कि मैं रिटर्निंग ऑफिसर था, तो वो that there was an observer of IRS, हमको IAS की आदत थी। तो suddenly he got very panicky. There was some demonstration, काउंटिंग रुकवा दी, थोड़ा झगड़ा सा हो गया दो पॉलिटिकल पार्टीज ने, तो he became very panicky. I said, nothing doing, it will settle down, don't worry, we are here to handle it. नहीं इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। I said कोई बात नहीं, जो होगा वो देखेंगे, but then just stay calm. But I'm saying that calmness comes with the service. You know, we are almost of equal level. We are same people from the same college, same background, and join different services. After 10 years, you see people, IPS होगा, IRS होगा, या इंफॉर्मेशन सर्विस का होगा, या IAS का होगा। उन लोगों के बिहेवियर में आप कभी चेक करें, आपके सीनियर होंगे और लोग होंगे, कि कितना ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आता है। Because we improve, we adjust as per the culture requirement of our job. हर जॉब का एक अलग कल्चर रहता है, एक हर अलग रिक्वायरमेंट रहती है। You have to fit in that. Like I said कि you are a DM, everybody is waiting for you to make decision कि यार आप तो बहुत महान हो, आप तो बड़े नॉलेजेबल हो, और फैक्ट है कि आप नहीं हो। आपको पता है कि मेरे को इतनी नॉलेज नहीं, मेरे से सारे नॉलेजेबल है, बट यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ कि हाँ यार ये तो मेरी, दे आर लुकिंग टुवर्ड्स यू कि इसी को सोल्यूशन देना है, इसी को, चाहे वो आईआईटी से बड़ा इंजीनियर है, चाहे मेरी एडमिशन नहीं हो सकी आईआईटी में, या मैं कोई सीएमओ है जो मौलाना आजाद से क्लियर किया है, मैं आई फेल्ड इन दैट एमबीबीएस टेस्ट, बट he is the best doctor, he is the best engineer in the country, but they are looking towards you for solutions. तो मेरे को solution देना है, तो then I have to see how do I arrive on a right decision. मैं सही decision लूं, ये मैं कैसा possible हो सकता है, क्योंकि सारों की expectation मेरे से है। तो उस expectation के चलते मेरे को अपना level उस ऊंचा करना पड़ता है। That happens with every kind of job. Especially when you are in management, चाहे आप CEO हो, चाहे आप secretary हो, DM हो, कहीं भी हो, if you are faced with the situation
Before joining, I was in a private company, a government organization, also for some time in university also. So I've seen different life also before joining service. But सर्विस आपको उस तरह से ट्रेन करती है, ट्रांसफॉर्म करती है, और आपका रिएक्शन अलग अलग सर्विस के हिसाब से, अलग अलग एक्सपीरियंस के हिसाब से, अलग अलग सिचुएशन में, सेम सिचुएशन में 3 लोगों का रिएक्शन डिफरेंट हो सकता है, बिकॉज दे हैव ए डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट एक्सपीरियंस। तभी मैं कहा नेवर रिटायर। यस, अगर किसी ने नौकरी अच्छी की है, ही शुड नेवर रिटायर इन हिज लाइफ, डू समथिंग। ये नहीं है कि आप जॉब ही करें, नौकरी के पैसे के लिए करें, फ्री करें, कोई सोशल वर्क करें, बट वन शुड नॉट रिटायर। तो मैं बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस, तो अगर मैं स्टोरी सुनाने लग जाए तो बहुत लंबी लंबी स्टोरी रहती है, और रिटायरमेंट के बाद रिटायर्ड ऑफिसर ना बहुत लंबी स्टोरी सुनाते हैं, तो इसलिए मैं उसको अवॉइड करूंगा। क्वेश्चन आंसर नहीं इसीलिए वो कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रुचि जी। Does any factor of luck and fortune really work for the candidates aspiring to be civil servants, or it's just about the hard work, determination, and patience? Kindly share your take on this. इसमें determination तो definitely, I told you ना, if you don't have determination, you will not transform yourself. You will not look for those things which makes you successful in examination. आपको कैसे एग्जाम का रिप्लाई करना है, कितना करना है, कितनी चीज पढ़नी है। I'll give you small, आप कह रहे हो ना कि एक शेयर एक्सपीरियंस। जब मैं सिविल सर्विस के एग्जाम में देने से पहले तैयारी कर रहा था, तो फ्रेंड ऑफ माइन, आई सेड यार मेरे को इस टॉपिक में कुछ मिल नहीं रहा है, कैन यू गिव मी समथिंग। तो ही थोड़ा ज्यादा पढ़ता था वो, तो उसने कहा लाइब्रेरी में आ जाना फलाना टाइम, I'll give you, I'll help you, and मैं चला गया लाइब्रेरी। उससे मैं लाइब्रेरी कम जाता था, वो थोड़ा बहुत ज्यादा। एंड यू नो देयर वाज अ स्मॉल टॉपिक, आई आस्क्ड हिम, एंड उसने मेरे को ना 6-8 किताबें लाके मेरे टेबल पे धर दी, बैठा दिया एक जगह, और ये लोग कहते। आई टोल्ड हिम, माय डियर, मैंने इतनी पढ़ाई तो कभी नहीं की, मैं नहीं पढ़ सकता इतनी सारी किताबें, और इतना छोटा सा टॉपिक, इतनी छोटी सी रिक्वायरमेंट। मैंने कहा यार तुम मेरे को पागल कर देगा, मेरे को तो 1-1.5-2 पेज का, 3 पेज का ज्यादा से ज्यादा, दैट्स व्हाट आई कैन रीड। ये किताबें मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं पढ़ता हूँ इतनी किताबें। एंड दैट डे आई रियलाइज्ड कि दैट पर्सन कैन नेवर क्लियर द एग्जामिनेशन। और बेचारा वो ना स्टेट सिविल सर्विस निकाली उसने, ना, क्योंकि पढ़ने को तो भाई नॉलेज तो दुनिया में बहुत है, एंड nobody can have all the knowledge in world. So कितना मेरे को जानना है, ये अगर आपके पास ये आप assess नहीं कर पाते हो, then you are not successful, and that you will only be doing if you have determination. Yes, I'll say कि determination 100% is required. Then after that, patience. Patience, I'll not say if you are स्मार्ट इनफ तो आप निकल ही जाओगे, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, मैं ये कहूंगा कि इफ यू हैव कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ। पेशेंस तो क्या है, आप 6-6 साल तक एग्जाम दिए जा रहे हो। आई हैव सीन प्लेंटी जो 6-6 साल दे रहे हैं, एंड पीपल टोल्ड मी कि ये बहुत इंटेलिजेंट है। कैसा इंटेलिजेंट? 6 साल से एग्जाम दे रहा है। भाई अगर 6 साल से एग्जाम दे रहा है तो इंटेलिजेंट नहीं है भाई, फिर तो something is wrong with him, he's not, and तो ये चीज ना, मैं इसको भी नहीं कहूंगा कि भाई that is also luck. Yes, a bit of luck also plays role, because आपके एक वो होता है जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, हमारे टाइम में 2 होते थे, अभी 1 कर दिया है इन्होंने। तो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, समटाइम that's a technical subject, and sometimes you get a type of question you are weak in that area, and you get some questions also, because जो बाकी GS के क्वेश्चन है वो बड़े इस तरह से आते हैं कि अगर आप में थोड़ी सी भी कॉमन सेंस है एंड उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज है, you can write something on that.
बट जो टेक्निकल है जेनेटिक्स है, तो जेनेटिक्स यू विल नॉट नो, इफ यू नो यू नो इट, इफ यू डोंट नो यू डोंट नो इट, यू कैन नॉट राइट समथिंग। हाँ, सोशल इश्यूज है और लीगल इश्यूज है या किसी उसमें जिस तरह के आप यू विल सी द क्वेश्चंस ऑफ, जो मेन में क्वेश्चन आते हैं जिसके आपके सब्जेक्टिव आंसर देने होते हैं, उसमें इवन इफ यू डोंट नो द डेटा और फैक्ट्स, यू कैन राइट समथिंग, यू शुड बी कैपेबल ऑफ राइटिंग समथिंग, तभी आप एग्जाम पास कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंस इज मेड इन द समटाइम ऑप्शनल में, थोड़ी सी लक I'll say, but if you have strong determination and so strong you get time to prepare yourself और सारे, तो लक का रोल मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा है। बट यस, लक इसलिए भी थोड़ी सी वो है कि यू मे बी वेरी गुड बट दैट ईयर इट हैपेंस विद अस आल्सो, एक साल बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस हाई चली गई, एक बार कम चली गई, तो कभी बिकॉज इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इफ 10 पीपल आर अहेड ऑफ यू और 10 ने सिलेक्ट होना है, आप 11वां भी इक्वली अच्छा हो सकता है लेकिन वो रह जाएगा। दैट luck has a role, but not, we cannot say कि हम बिल्कुल लकी था सारा, ऐसा नहीं। और इसमें IAS के बाद भी और सर्विसेज है, कहीं ना कहीं आदमी फंस जाता है। नंबर 1, इफ यू आर ओके। सेकेंडली, यू शुड हैव a confidence कि कहीं ना कहीं तो मैं निकलूंगा, IAS नहीं निकला तो कहीं और निकलूंगा, I'll do better than this. And there are lot of professions where one can do. और रुचि जी, next question. Thank you very much, sir. With this, we come to an end to questions. Now, I would like to call upon Vidayak for further proceeding. आपका धन्यवाद सर, आपने सभी सवालों के जवाब देकर हमारा मार्गदर्शन किया। आपका एक्सपीरियंस उनका बहुत अच्छा लगा। मैं आशा करता हूँ सभी छात्रों को उनके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। तो कार्यक्रम को अंतिम छोर की ओर बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूंगा दिशा के संयोजक डॉक्टर दर्शन पांडे सर को कि वे आए और वोट ऑफ थैंक्स प्रस्तुत करें। जी धन्यवाद विनायक जी। कार्यक्रम के बिल्कुल अंतिम छोर पर खड़े हैं हम लोग और समय भी बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, लेकिन निस्संदेह आज का ये सत्र है, आपका जो कार्यक्रम उद्घाटन सत्र का रहा है, बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा है, बहुत ही प्रेरक रहा है। और हमारे अतिथियों द्वारा जो भी बातें रखी गई हैं हमने उनके अनुभव सुने और आपके जो प्रश्न थे, खासतौर पर बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न आपने रखे थे, तो उन सभी प्रश्नों पर बहुत ही गंभीरता पूर्वक और बहुत ही उपयोगी जो है सुझाव और निर्देश आपको प्राप्त हुए हैं। तो निश्चित रूप से बहुत ही ज्ञानवर्धक सत्र रहा है और आगे भी, अभी ये चूंकि प्रारंभ ही है, हमारा आगाज ही हुआ है और आगे का क्रम जो है इस प्रकार से बना रहेगा। तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री प्रेमपाल शर्मा जी का, हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर सुरेंद्र सिंह प्रोक्ता सर का, कि उन्होंने आज के हमारे इस कार्यक्रम में अपने महत्वपूर्ण समय जो है हमारे साथ साझा किया है। इसके अलावा हमारे कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर शिव कुमार सहदेव सर का, जिन्होंने प्रारंभ में अपना वक्तव्य रखा, उनका सहयोग, उनका मार्गदर्शन हमें सदैव से मिलता रहा है और कभी भी किसी बात की जरूरत होती है तो सर तुरंत जो है हमें सहयोग करते हैं। इसके अलावा दिशा सोसाइटी के सभी जो प्राध्यापक साथी जुड़े हुए हैं, उन सभी का, अभी देख रहा था डॉक्टर भरत रत्नू जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर प्रबुद्ध जी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे साथी जो हैं जो इस सोसाइटी के साथ जुड़े हुए हैं। तो दिशा सोसाइटी के सभी जो वॉलंटियर्स हैं, खासतौर पर जो उमेश है और उनकी पूरी टीम है, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूं, साथ में शुभकामनाएं और बधाई भी देता हूं कि उन्होंने एक अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं ऑनलाइन माध्यम से रुचि यादव जी, विनायक जी, और जो भी तकनीकी जो सहयोग हमें मिला है, उन सभी विद्यार्थियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और सबसे ज्यादा आभार जो इस कार्यक्रम में जो पार्टिसिपेंट्स हैं, क्योंकि बिना उनके कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता है। तो जो भी प्रतिभागी हैं, जो भी श्रोता हैं, जो मौन रूप से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन मौन की भी एक भाषा होती है और निश्चित रूप से हम मौन की भाषा को समझ रहे हैं
और उन सब का साथ भी हमारे साथ रहा है, तो उन सभी के लिए भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। बहुत ज़्यादा कहने का समय नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा प्रयास है कॉलेज के द्वारा लिया गया है, और सभी विद्यार्थी इसमें अपने तन मन से लगे हुए हैं, पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ, और आने वाले समय में ये सोसाइटी जो है मुझे लगता है बहुत अच्छा करने वाली है। बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, साथ में मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। जी धन्यवाद। धन्यवाद सर। हम धन्यवाद सभी का करते हैं जो कि आप लोग आए, आपने इस प्रोग्राम को काफी ज्यादा सक्सेसफुल बनाया। आप सभी का पुनः धन्यवाद। ये रिकॉर्डिंग रोक सकते हैं आप, है ना? रिकॉर्डिंग रोक सकते हैं। जी ठीक है, सभी को नमस्कार, बंद कर सकते हैं डायरेक्ट। थैंक यू।